Hello, Assalamu alaikum. I'm your biology teacher, and today we are going to discuss our topics, which are from page number 84 to 93. In our topic, we are going to discuss the reproduction in the rabbit, and we are also going to discuss the spermatogenesis and oogenesis in the rabbits, and the fertilization in them, and how the developmental stages convert the small egg into adult rabbit. And then we're going to discuss the growth in the human population and their consequences, which are caused by the overpopulation, and AIDS, which is as immunodeficiency syndrome, which is caused by the HIV, human deficiencies viruses, and which are responsible to causes the disease in population by decreasing their immunity level. And then we are going to discuss the role of different NGOs, how they are involved to give the awareness related to the disease and how to treat with these patients and to increase their morale and also to give the awareness to the social workers to reduce the spread of the AIDS within the population. First, the reproduction in the rabbit. In our previous lecture, we discussed the spermatogenesis in whole or kingdom Animalia, but today's lecture we are going to discuss it again related to the rabbits. First, in our previous lecture, we discussed that the spermatogonium cells have the ability to produce spermatocytes by the process of the mitosis, and these spermatocytes convert into spermatids by the process of the meiosis and decrease their genetic material from diploid to haploid. And these spermatocytes, after these differentiational stages, they become amotile by having a mitochondrial ring and a long tail. This whip-like tail have these sperms to move towards the eggs to do the fertilization and to produce a diploid organism again. In male rabbits, the reproduction system is consisting of two testes, which have the specialized cell tubes, which are named as seminiferous tubules. In these seminiferal tubules, having this spermatogonium, which are responsible for the sperm production. After these sperms are matured and get the ability to move, these sperms are collected by the epididymis tubes from the seminiferous tubules, and these epididymis tubules move these sperms towards the urethra, and through the urethra, these sperms are then secreted into the environment depending upon the organism. Either it's a oviparous or ovoviparous or just a oviparous, depending upon the organism. अब ये हमारे पास जो प्रोसेस थे वो तो हमारे पास रिलेटेड थे कि हमारे पास किस तरह से प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमारे पास स्पर्मेटोजेनेसिस के नतीजे में स्पर्मेटोगोनियम के अंदर से स्पर्म्स बन के हमारे पास टेस्टिस तक फॉर्मेशन होती है। लेकिन हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमारे पास एसोसिएटेड ग्लैंड्स भी हैं। इन एसोसिएटेड ग्लैंड्स की क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, क्या उनके स्ट्रक्चर्स हैं, उनको आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। टेस्टिस आर लोकेटेड इन द बैक ऑफ द स्किन विच इज़ नेम्ड एज अ स्कॉर्टियम और हमारे पास टेस्टिस के बीच में हमारे पास लुब्रिकेंट एग्जिस्ट करता है। मेन उसका फंक्शन जस्ट फ्रिक्शंस को रिड्यूस करना है, प्लस उसके हमारे पास प्रोटेक्शन करना है। जबकि इसके अलावा टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स उसी वक्त देते हैं जब उसका टेम्परेचर बिलो देन 37 सेंटीग्रेड हो, जो कि बॉडी का टेम्परेचर हमारे पास 37 सेंटीग्रेड है। तो विद इन बॉडी हमारे पास अगर इसको रखा जाता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो टेस्टिस हैं वो हमारे पास आमतौर पर स्पर्म्स की प्रोडक्शन नहीं करते। इसी वजह से बाय नेचुरली बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो कि वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे पास स्कोटम में सिक्योर टेस्टिस को आउट ऑफ द बॉडी एग्जिस्ट करते हैं, और जिसकी बेसिस पे सेक्सेस के आराम से डिफ्रेंशिएशन इजी हो जाती है। लेकिन याद रखें कि जो रैबिट्स हैं उनके अंदर एबिलिटी है कि वो स्कोटम को इनसाइड आउटसाइड बॉडी मूव कर सकते हैं फ्रीली, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है हमारे पास इनके बीच में सेक्शुअल जेंडर identification करना. Testes consist of the mass of the coiled tubes which are named as the seminiferous tubules.
अभी हमने ऊपर डायग्राम में भी चेक किया कि जो सेमी नेफिस ट्यूब्यूल्स हैं उसी के अंदर ही हमारे पास क्रॉस सेक्शन जब किया गया तो वहाँ पे ही हमारे पास स्पर्मेटोगोनियम सेल एग्जिस्ट करते हैं और वही स्पर्मेटोगोनियम सेल्स माइटोसिस और मियोसिस के प्रोसेस के नतीजे में स्पर्म्स की प्रोडक्शन करते हैं। Once sperms are formulated, the seminephis tubules transfer the sperms towards the epididymis, and the epididymis from the both testicle collect the sperms and then move towards the duct, which is named as a vas deferens. और जबकि वेस्ट डेफरेंस के साथ 3 आपके पास एसोसिएटेड ग्लैंड्स एग्जिस्ट करते हैं। इन 3 एसोसिएटेड ग्लैंड्स के फंक्शनैलिटी की बेसिस पर हमारे पास हमारे पास जो स्पर्म्स हैं उनकी यूरिथ्रा के साथ इसको अटैच करने के बाद इसको इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर लिया जाता है। जो आपके पास बोथ स्पर्म डक्ट हैं जो कि हमारे पास ओविडिडमस है और आपके पास वेस्ट डेफरेंस है। वेस्ट डेफरेंस जो है टेस्टिस से हमारे पास स्पर्म्स को कलेक्ट करने के बाद आपके पास उसको रिलीज़ करता है यूरिनरी ब्लैडर के जॉइंट पे, जहाँ पे यूरिथ्रा हमारे पास अटैच हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर पे। यहाँ पे हमारे पास जो है यूरिथ्रा के थ्रू जो वेस्ट डेफरेंस के थ्रू हमारे पास जो स्पर्म्स है उनको ये आपके पास यूरिनरी ब्लैडर में रिलीज़ कर लिया जाता है। यूरिनरी ब्लैडर से हमारे पास जो यूरिथ्रा में सर्कुलेटेड स्पर्म्स हैं आपके पास यहाँ पे मौजूद जो यूरिथ्रा की सराउंडिंग में मसल्स हैं उनकी एक्सटेंशन के नतीजे में और वहाँ पे हमारे पास कंट्रैक्शंस के साथ रिलैक्सेशन प्लस कंट्रैक्शंस, ये हमारे पास पैरेलल प्रोसेस है जिसके नतीजे में हमारे पास स्पर्म जो है वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द एनिमल्स के, अगर वो हमारे पास जैसे फ्रॉग्स हैं तो डेफिनेटली वो हमारे पास स्पर्म्स को आउट ऑफ इन्वायरमेंट को इसमें रिलीज़ करेंगे, लेकिन अगर वो हमारे पास मैमल्स हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनको विद इन बॉडी सिक्रीट कर दिया जाता है। यूरिथ्रा ट्रांसपोर्ट बोथ द स्पर्म्स एंड द यूरिन एट द सेम टाइम, इसी वजह से अगर सेम टाइम कर रहे हैं तो आप इसको यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट का नाम भी देते हैं कि यूरिन और जो आपके पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कलेक्टिवली वन ओपनिंग को यूज़ कर रहे हैं तो यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट वर्ड भी इनके लिए यूज़ किया जाता है। फ्रॉग के अंदर भी हमारे पास इसी तरह ही है। इसके बाद सीमन कंसिस्ट ऑफ द 10% ऑफ द स्पर्म, जबकि 90% ऑफ द फ्लूइड है। दिस फ्लूइड इज सिक्रेटेड फ्रॉम द एसोसिएटेड ग्लैंड। जो सबसे पहले जो स्पर्म जैसे ही हमारे पास एपिडिडमस में सिक्रीट होते हैं तो सबसे पहले सेमिनल वेसिकल्स उनके ऊपर हमारे पास जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं वो हमारे पास हाईली न्यूट्रिशनस वैल्यू होते हैं। अब हाईली न्यूट्रिशंस का वैल्यू का मकसद क्या है कि जब भी स्पर्म हमारे पास इन्वायरमेंट में मूव कर रहे हों तो माइटोकॉन्ड्रियल रिंग मैक्सिमम अमाउंट में इन्वायरमेंट से ये जो हमारे पास सेमिनल वेसिकल्स के सिक्रीशंस हैं उनको एब्जॉर्ब करके माइटोकॉन्ड्रियल रिंग हाई अमाउंट में एनर्जी को प्रोड्यूस करें ताकि स्पर्म्स जो हैं ये हमारे पास मोटाइल रहें और वो हमारे पास डेफिनेटली फर्टिलाइजेशन के लिए हमारे पास रिस्पॉन्सिबल हैं। इसके बाद जब इनके ऊपर सिक्रीशन हो जाती है न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की, सेकंड ग्लैंड प्रोस्ट्रेट ग्लैंड प्रोड्यूस अ सिक्रीशन दैट न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ द फ्लूइड। Why we need the prostate glands before the sperms to enter into the urinogenital tract? क्योंकि हमें पता है कि यूरिनरी ब्लैडर से यूरिथ्रा की तरफ डेफिनेटली यूरिन सिक्रीट होता है और यूरिन चूँकि एसिडिक इन नेचर है तो ऐसे कंडीशन में स्पर्म्स को लो टेम्परेचर लो पीएच मिलने की वजह से, एसिडिक इन्वायरमेंट मिलने की वजह से उनकी डेथ भी हो सकती है। तो इसी वजह से उनके ऊपर आफ्टर न्यूट्रिशनस वैल्यूज़ के बाद हमारे पास जो एग्जाम हमारे पास जो सिक्रीशन एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड की, वो हेल्प करेगी कि उस एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज कर सके ताकि स्पर्म जो है वो सर्वाइव करें और मैक्सिमम अमाउंट में एग तक उनकी अप्रोच हो और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन कर सकें। प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन के बाद कॉर्पस ग्लैंड प्रोड्यूस अ सिक्रीशन दैट लुब्रिकेंट द डक और डेफिनेटली इस डक की वजह से हमारे पास जो स्पर्म है उनका डिस्टेंस के जो है वो ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हैं जिसके नतीजे में हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्पर्म जो है वो एग तक अप्रोच करके वहाँ फर्टिलाइजेशन करते हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर कॉर्पस ग्लैंड जो है वो सिक्रीशन ना करें
तो आपके पास स्पर्म की जो अमाउंट है वो बिलो देन 50% हो जाती है। तो इसी वजह से स्पर्म्स की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो मैक्सिमम ट्रैवल जो है वो कर सकें, और मैक्सिमम ट्रैवल वो उसी वक्त करेंगे जब फ्रिक्शन ना हो। और फ्रिक्शन ना हो उसके लिए हमारे पास कॉर्पस ग्लैंड जो है वो सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं जो एज ए लुब्रिकेंट एक्ट करते हैं, और हमारे पास जो डिफ्रिक्शन को रिड्यूस करते हुए स्पर्म्स की हेल्प करते हैं कि वो मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करें। आपके पास जो यहाँ पे टेस्टिकल्स हैं, टेस्टिकल अभी हमने कहा कि आउटर मोस्ट कवरिंग जो हमारे पास एग्जिस्ट करती है स्कोटम, उसमें हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, और इसके अंदर जो हमारे पास ट्यूब्स हैं, सेमिनस फिजिकल ट्यूब्स, वो हमारे पास एग्स की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिनको कलेक्ट किया जाता है एपिडेडिमस में। एपिडेडिमस ब्लड जो दोनों से हमारे पास जो है टेस्टिकल्स के सेमिनस से जब वो स्पर्म्स को कलेक्ट कर देता है, तो वो कलेक्टिवली डक जो है दोनों टेस्टिकल से कलेक्टिवली डक, जिसको हम वेस डेफरेंस कहते हैं, उसमें स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करता है। वेस डेफरेंस जैसे ही यूरिनरी ट्रैक्ट के करीब किया जाता है, जहाँ पे यूरिथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर अटैच हो रहे हैं, उससे पहले हमारे पास सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स आते हैं। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स उनके ऊपर न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ की स्प्रे कर देते हैं। उनकी सिक्रीशंस के बाद नेक्स्ट हमारे पास प्रोस्ट्रेट ग्लैंड आता है, ताकि वो यूरिथ्रा में इससे पहले कि यहाँ पे हमारे पास उनकी एंट्री हो हमारे पास यूरिथ्रा की तरफ, उससे पहले ही हमारे पास उनके ऊपर इससे प्रोस्ट्रेट ग्लैंड्स की सिक्रीशन हो जाती है, ताकि हमारे पास जो आगे यूरिथ्रा के अंदर अगर यूरिन अगर मौजूद है या उसके ट्रेस एलिमेंट्स मौजूद है जिसकी वजह से पीएच हमारे पास लो है, तो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। और उसके ऊपर हमारे पास डेफिनेटली जो सबसे लास्ट आपके पास जो ग्लैंड है कार्पस ग्लैंड, वो हमारे पास सिक्रीशन करेगा ताकि फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सके। इसके बाद प्रोसेस आता है हमारे पास ओजेनेसिस का। ओजेनेसिस के प्रीवियस लेक्चर के लिहाज से अगर उसको याद किया जाए तो हम लोगों ने इसके किया था कि हर एक ओवरी के अंदर फॉलिकल्स मौजूद हैं, और डिफरेंट फॉलिकल्स ही जब मेच्योर होते हैं तो वो हमारे पास ओगोनियम में कन्वर्ट होते हैं, और वो हर एक ओगोनियम आगे प्राइमरी ओसाइट और फिर प्राइमरी ओसाइट मियोसिस के नतीजे में सेकेंडरी ओसाइट और आगे जाके एग्स की फॉर्मेशन करता है। एग में हम लोगों ने ये कहा था कि हमारे पास एंड में 4 सेल्स बनाता है, लेकिन 4 सेल्स में से सिर्फ एक फंक्शनल एग ही न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करेगा, जबकि बैक साइड पे हमारे पास जो फॉलिकल है वो हमारे पास ब्रेक डाउन हो जाता है, इसके बाद डिस्टोरेशन कॉज हो जाती है, और इतने में हमारे पास लेकिन ये भी याद रखिएगा कि एक ओवरी के अंदर एक फॉलिकल मौजूद नहीं है। हमारे पास ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूस बेसिस पे ओवरीज के अंदर मूव करता रहता है, और जितना ही ज़्यादा हमारे पास फॉलिकल्स होंगे उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ़ एग्स जो है वो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेगा। अगर वो फिशेस हैं तो बहुत सारे ऐसे फिशेस भी हैं जो कि थाउजेंड्स की तादाद में एग्स प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो ओवरीज हैं डेफिनेटली उसके अंदर फॉलिकल्स भी उतने ज़्यादा होंगे। लेकिन जैसे हायर एनिमल्स की तरफ जाते हैं, जैसे वेल है या चिंपैंजीज वगैरह की तरफ चले जाते हैं या एलिफेंट्स के वगैरह की तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ पे इन फॉलिकल्स की अमाउंट जो मेचुरेशन अमाउंट है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाती है। मतलब कि एक वक्त में एक जो फॉलिकल है वो एक एग रिलीज़ करता है या 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, डिपेंड करता है वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है। कि जितने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉलिकल्स मेच्योर होंगे उतने ही ज़्यादा एग प्रोड्यूस होंगे, उतने ही ज़्यादा हमारे पास चांसेस हैं कि न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस हो। ओजेनेसिस का प्रोसीजर हो जाने के बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को थोड़ा सा और अगर डिटेल में लेके जाएं तो हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 2 ओवरीज और इसी तरह से एसोसिएटेड ग्लैंड के साथ है, जिस तरह से मेल के अंदर 2 टेस्टिस एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं। Ovaries are small oval organelles situated in the abdominal cavity. हमारे पास the outer region of ovary ducts produce egg cells which having the follicles. जबकि फॉलिकल्स के जो हमारे पास हैं असल में सपोर्टिंग सेल्स हैं ओगोनियम सेल्स के, और वो हमारे पास प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशनस वैल्यूज़ टू द एग्स। एग्स आर रिलीज इन द फ्लोपियन ट्यूब्स, एंड जबकि फ्लोपियन ट्यूब ही वो ट्यूब्स हैं जहाँ पे स्पर्म्स, अगर रैबिट्स हैं डेफिनेटली हम रैबिट को डिस्कस करें तो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर ही हमारे पास फर्टिलाइजेशन होगी। डेट्स मीन कि हमारे पास जो स्पर्म्स को जो डिस्टेंस कवर करने हैं वो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कवर करने के बाद हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्रॉस करते हुए उसके लास्ट एज पे मेन फ्लोपियन ट्यूब
पर आके उसको एग को फर्टिलाइज़ करना होगा। आफ्टर एग की फर्टिलाइजेशन के बाद उसको यूट्रस में मूव किया जाता है। अब डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है। अगर वो किसी तरह से जैसे बर्ड्स हैं या फिर आपके पास दूसरी जो स्मॉल मैमल्स हैं, जिस रेप्टाइल्स स्पेशली, अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें तो वो डेफिनेटली एग्स के ऊपर शेल प्रोड्यूस करेंगी। फिर उस शेल को अब इन्वायरमेंट में एकदम से रिलीज़ कर लिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मैमल्स, जैसे हम लोगों ने कहा कि मैमल्स के अंदर वो फ्लोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन करने के बाद हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म चूँकि अपने यूट्रस के अंदर इन फर्टिलाइज एग्स को इम्प्लांट करते हैं। वो एग जब एक दफ़ा उसके अंदर माइटोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो आप उसके लिए वर्ड एम्ब्रियोज यूज़ करते हैं। और एम्ब्रियो जो है वो आगे ग्रोथ की डेवलपमेंटल स्टेजेस से क्रॉस ऑन होते हुए न्यू ऑर्गेनिज्म के फॉर्मेशन करता है। विद इन बॉडी डेवलपमेंट हमारे पास ज़्यादा सिक्योर इस वजह से कि इन इंटरनल इन्वायरमेंट बेस्ड, आपके पास हाईली मेंटेन इन्वायरमेंट है, न्यूट्रिशनल वैल्यू इन्वायरमेंट फीटस के अकॉर्डिंगली मिल रही है और न्यू ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंगली मदर से उसको प्रोवाइड होगी। और हमारे पास प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये भी देखें तो डेफिनेटली प्रे प्रेडेशन रिलेशनशिप में हाईली चांसेस हैं कि मदर की डेथ हो जाएगी। लेकिन मेन मदर उसको एग को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी हर एक लिहाज से, चाहे वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इसको बात करें। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम बात करें जिसमें हम वापस एग्स को इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ कर रहे हैं, हल्के से इन्वायरमेंटल चेंजेस में अगर उसको पानी लगे या हल्का सा टेम्परेचर कम हो गया तो वो एग अंदर से मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रक्शन हो जाती है, एम्ब्रियो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें पता है कि अगर उस एग्स को इन्वायरमेंट में रिलीज़ करना है तो डेफिनेटली ऐसी कंडीशन में उनका नंबर हाई होना चाहिए, फॉलिकल्स भी ज़्यादा होने चाहिए ताकि वो हाई नंबर में एग्स को प्रोड्यूस करे। लेकिन अगर एग ने मुकम्मल तौर पे विद इन बॉडी ही ग्रो करनी है और न्यू ऑर्गेनिज्म को इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ करना है, उसकी बर्थ करनी है, तो डेफिनेटली हमारे पास ऐसी कंडीशन में नंबर जो है वो रिड्यूस होता जाएगा। वो डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म कौन सा है। अगर हमारे पास डेफिनेटली अगर हमारे पास रैबिट्स हैं या पिग्स हैं तो वहाँ पे 6-7 आपके पास आ जाएंगे। लेकिन अगर आप एलिफेंट्स की तरफ चले जाए तो 1 या 2 आपको इस तरह से मिल जाएंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओपनिंग ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब्स लाई क्लोज टू द ओवरी, मतलब ओवरीज में जब फॉलिकल ट्यूब्स जो वो आपके पास फॉलिकल्स हैं उनकी ब्रेक डाउन होगी तो जैसे ही वो यहाँ पे रिलीज़ होंगे, तो जैसे ही इनकी ब्रेक डाउन हो रही है तो यहाँ पे हमारे पास फ्लोपियन ट्यूब्स यहाँ पे उसकी एंड जो है हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं और वो एंडिंग इन ओवरीज से निकलने वाले एग्स को कलेक्ट करती है और उसको आगे ट्रांसफ़र करती है। Fertilization occurs in the fallopian tubes. The uterus of the rabbits is divided into 2 separate parts of horn. इसको हम uterus horn भी कहते हैं, हम इसको आगे डायग्राम में भी देख लेते हैं। The uterus horn join and open into vaginal or peritoneal canal and the cervix where the sperms of the males and deposits. और ये cervix वही पोर्शन है जो कि यूट्रस को और बर्थ कनाल को सेपरेट करता है। अभी इसके स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं। अभी हमने कहा कि जो यूट्रस है वो जैसे ही आगे 2 ओवरीज की तरफ मूव करता है वो हॉर्न लाइक शेप्स की फॉर्मेशन करता है जिसको हम यूट्रस हॉर्न कहते हैं। जबकि ये यूट्रस हॉर्न जब आगे की तरफ आते हैं तो ये हमारे पास कलेक्टिवली यूट्रस की फॉर्मेशन करते हैं और वो आगे जाके एक ट्यूब की फॉर्मेशन करते हैं और वो जो ट्यूब है उसको आप बर्थ के सर्विक्स कहते हैं और ये सर्विक्स आगे जाके बर्थ कैनाल में ओपन होते हैं जिसको हम वेजाइना का वर्ड यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो सर्विक्स का पोर्शन है ये यूट्रस को और साथ में जो वेजाइना है उसको सेपरेट आउट कर रहा है और यहीं पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स में एग्स को यहाँ स्पर्म्स को यहाँ डिपॉजिट करना मस्ट है। अगर सर्विक्स का डायमीटर कम हो तो ऐसे कंडीशन में भी स्पर्म्स मूव नहीं करेंगे इन फ्लोपियन ट्यूब्स तक और डेफिनेटली अगर वो फ्लोपियन ट्यूब्स तक यहाँ ट्रैवल नहीं कर पा रहे तो डेफिनेटली फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी नहीं हो पाएगा। अगर ये भी है कि हमारे पास अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है और अगर स्पर्म्स की तादाद कम है तो डेफिनेटली इतना हाई डेफिनेटली यहाँ पे भी हमारे पास चूँकि हमारे पास यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है ताकि वो यहाँ यूरिनरी जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो यहाँ पे भी पीएच बहुत ज़्यादा लो है तो बहुत हाई अमाउंट में स्पर्म्स की डेथ इस पोर्शन में भी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो ट्रिलियंस की तादाद में स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में 5 या 6 ही आगे तक जा पाते हैं और हर एक
स्पर्म में से सिर्फ एक स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज करेगा। तो डेट्स मीन अगर 8 स्पर्म चले जाएं और एग एक ही हो तो एक एग को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। लेकिन अगर 8 एग हैं और 8 स्पर्म्स पहुंच चुके हैं तो 8 स्पर्म्स उनको फर्टिलाइज करेंगे। तो डेफिनेटली ऐसे कंडीशन में आपके पास न्यू ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो आपके पास 8 एक्सपेक्टेड होंगे। Fertilization and development in the rabbits. Rabbits can breed throughout the year, but the male rabbits can commonly sterile during the summer month. समर मंथ में अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर एबिलिटी है कि वो मेजॉरिटी के अंदर कि वो इन्वायरमेंट में उनके जो टेस्टिकल्स हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं। लेकिन चूँकि रैबिट्स के वो हमारे पास टेस्टिस जो हैं चूँकि विद इन बॉडी है तो डेफिनेटली ऐसी कंडीशन में चूँकि उनकी बॉडी के टेम्परेचर भी जब वहाँ पर हाई है और आपके सराउंडिंग इन्वायरमेंट का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हाई होने की वजह से आम तौर पे उनके जो टेस्टिस हैं उसके अंदर हमारे पास स्पर्म्स की प्रोडक्शन नहीं होती। लेकिन जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके हमारे पास एक्सपोज्ड हैं टेस्टिस इन्वायरमेंट में तो वो थ्रू आउट द ईयर जो है वो फर्टाइल है, वो किसी भी सीज़न के अंदर एबिलिटी रखते हैं कि वो हमारे पास मैक्सिमम अमाउंट में स्पर्म्स को प्रोड्यूस कर सकें। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ज़ायगोट इज़ कैरिड टू यूट्रस और यूट्रस के अंदर अब डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म आया एग को रिटेन करता है अपने पास। अगर वो एग को रिटेन करता है तो डेफिनेटली ऐसी कंडीशन में जो ये ज़ायगोट है वो आपके पास यूट्रस के साथ अटैच हो जाएगा। अटैचमेंट हो जाने के बाद प्लेसेंटा के थ्रू वो ऑर्गेनिज्म जो है वो डेफिनेटली अपने मदर से तमाम तर न्यूट्रिशनस वैल्यूज़ भी डेवलप कर लेता है। ऐसी कंडीशन में चूँकि मदर और फीटस के बीच में फ़िज़िकल जो अटैचमेंट क्रिएट हो जाती है, बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, तो इवन आप जो मदर की के जो हार्ट बीट है उसमें आप इवन उनके जो फीटस होता है या उसके बेबीज़ हैं उसकी हार्ट बीट्स को भी फील कर सकते हैं। इसी तरह से आपके पास जो उनकी ब्लड का जो सप्लाई है चूँकि वो हमारे पास उस ज़ायगोट की तरफ भी मूव कर रहा है तो कम्प्लीटली फूड जो है वो हमारे पास ट्रांसफ़र हो रहा है, मदर का ब्लड जो है वो बेबी के अंदर ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर वहाँ से दोबारा से मूव करके मदर की बॉडी में आ रहा है। तो उसका मतलब है कि इवन इसका मतलब है कि अगर ब्लड के अंदर किसी किस्म की इम्प्योरिटीज़ आ गई हैं या वायरसेस या बैक्टीरियाज आ गई हैं तो मदर की बॉडी उसको फ़िल्टर भी कर रही है। इस तरह से भी ज़ायगोट जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो सेफ़ है और किसी तरह से भी उसको न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी नहीं है क्योंकि डेफिनेटली ब्लड जो है वो थ्रू आउट उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस अवेलेबल है तो डेफिनेटली उसकी ग्रोथ किसी वजह से भी हर्डल नहीं होती। Zygote has started dividing and it is now called an embryo. Embryo is implanted in the uterus. A connection is formed which is named as a placenta. And embryo develop into a new offspring which is a rabbit kid from 30 to 32 days after which it is born. और इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास रैबिट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो आपके पास आपके पास 2 मंथ के बाद आपके पास न्यू प्रोजेनी जो है वो प्रोड्यूस करेंगे एक दफ़ा वो अडल्ट हो जाएं तो। Topic 14.4.4 Growth in Human Population and Consequences. Human population according to 2017 to 2008 आपके पास 16 आपके पास मिलियन थी लेकिन अब जो है वो 17 को क्रॉस कर चुकी है। ये अभी ये कैलकुलेशन आपके पास रिसेंटली जो आपके पास की गई है वो आपके पास यहाँ इसकी वैल्यूज़ गिवन नहीं है। वो population growth exceed the carrying capacity of an area of environment then it is result in our population. आपके पास डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर आपके पास एक स्पेसिफिक एरिया अगर किसी तरह से भी फीडिंग की रिक्वायरमेंट्स को या उसकी हाउसिंग का जो एबिलिटी है अगर वो उससे एक्सीड कर जाए उस ऑर्गेनिज्म के अमाउंट को तो उसको आप लोग ओवर पॉपुलेशन की कैटेगरीज में पुट करेंगे। There is a high infant and the child mortality rate in the overpopulated areas due to poverty. मोर्टेलिटी इसमें आपके पास है कि जितना ज़्यादा आपके पास इन्वायरमेंट के अंदर अवेयरनेस होगी, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ एग्जिस्ट करेंगे तो ऐसे कंडीशन में आपके पास इन्फेनेंट की जो है आपके पास है ये चाइल्ड की आपके पास जो डेथ है उसकी रेट आमतौर पे कम होती है तभी वो ओवर पॉपुलेशन काज हुई है। लेकिन वंस ओवर पॉपुलेशन एक्सीड करे सर्टन लिमिट से तो डेफिनेटली ऐसी कंडीशन में हॉस्पिटल्स के अंदर फैसिलिटीज़ आपकी चूँकि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं है आपकी बॉडी के मतलब इन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली तो डेफिनेटली वो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना करने की वजह से जो डेथ रेट है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है।
सेकंड जो उसकी जो रीज़न बताई गई है वो पॉवर्टी है। जितनी ज़्यादा गुर्बत होगी तो ऐसी कंडीशन में भी चूँकि हॉस्पिटल्स की डेफिनेटली जो एक्सपेंसेस हैं उनको फुलफिल नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली आपके पास मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से जो इन्फेंट है उनकी चाइल्ड उनकी डेथ रेट जो है वो हाई हो जाता है। प्रॉब्लम रिलेटेड टू ओवर पॉपुलेशन में आपके पास शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हो जाएगी। जैसे कि आप इस चक्री रोड के इसमें एरिया में रहते हैं तो डेफिनेटली आपने नोट किया होगा कि जैसे जैसे आबादी बढ़ती जा रही है जो फ्रेश अंडर ग्राउंड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं उसकी डिप्लीशन होती जा रही है। उसकी एक वजह ये भी है कि आपके पास जो शॉर्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में आप जैसे जैसे आबादी को बढ़ाते जा रहे हैं तो फर्टाइल लैंड को आप डेफिनेटली हाउसिंग स्कीम में कन्वर्ट करते जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जो आपके पास वाटर है वो आपके पास सॉइल के अंदर चूँकि एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो अंडरग्राउंड फ्रेश वाटर फैसिलिटीज़ जो है वो रिसोर्सेज जो है वो डिप्ली ऐसे ऐसा कम होना शुरू हो जाएंगी। वाटर के साथ साथ चूँकि आप वहाँ से फॉरेस्ट को रिमूव कर रहे हैं, आप वहाँ पे लैंड फील्ड्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, फिर आप ओवर पॉपुलेशन की वजह से फील्ड्स को रिमूव करते हुए आप वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर देते हैं, हाउसिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं या स्कूल बनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज गिनते हैं वो आप उसको रिड्यूस कर रहे हैं। वुड की जो रिसोर्सेज है वो आपकी कम हो रही हैं। फ्रेश एयर जो है उसकी अवेलेबिलिटी जो है वो ख़त्म होती जा रही है। एयर पोल्यूशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, साउंड पोल्यूशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, वाटर पोल्यूशंस आ जाएंगे, आपके पास सीवेज प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आपने तमाम तर दरख्तों को रिमूव करना शुरू कर दिया है तो बहुत सारे परिंदे जो हैं वो वहाँ से माइग्रेट कर देंगे। तो डिफॉरेस्टेशन के साथ लॉस ऑफ हैबिटेट होने की वजह से जो इकोसिस्टम बन चुका है, ऑर्गेनिज्म का आपस में प्रे प्रेडेशन रिलेशनशिप्स बन चुके हैं, वो भी मुकम्मल तौर पर लूज़ होना शुरू हो जाएगा। मोर पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगा। जितनी पोल्यूशन आप ज़्यादा करते जाएंगे, मतलब जितने आप ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन मोनोऑक्साइड को या मीथेन गैसेस को आप इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज़ करना शुरू कर देंगे, उतनी ही ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी। और साथ साथ चूँकि आप फैक्ट्रीज भी आपने इम्प्लांट कर दिए हैं, साथ में व्हीकल्स भी जो है वो स्मोक प्रोड्यूस करें जिसके अंदर आपके पास नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स मौजूद है, जैसे सल्फर ऑक्साइड्स हैं या नाइट्रोजन के ऑक्साइड मौजूद है। तो ये आपके पास एयर के अंदर मौजूद जो वाटर है उसके साथ रिएक्शन करके आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के फॉर्मेशन करते हैं। एसिडिक रेन के जो चांसेस हैं वो बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो सॉइल के अंदर जो एरेशन है वो भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। सॉइल की एसिडिटी इंक्रीज़ होने की वजह से जो रूट्स हैं इस प्लांट्स के वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा ओवर पॉपुलेशन के लिए वजह से आपको मोर हाउसिंग यूनिट्स रिक्वायर्ड होंगी, मोर हॉस्पिटल रिक्वायर्ड होंगी, जॉब्स रिक्वायर्ड होंगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिक्वायर्ड होंगी, फूड क्रॉप्स की जो यील्ड है वो आपको रिक्वायर्ड होगी कि वो हाई होना शुरू हो जाए ताकि आपके पास किसी वजह से फेमाइन ना कॉज हो जाए। इसके अलावा द UNFPA वर्कर्स इन आवर 140 कंट्रीज़ फॉर अवेयरनेस अबाउट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आवर पॉपुलेशन से रिलेटेड काम कर रही हैं, जिसमें हमारे पास चाइना के ऊपर सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन था इनका, क्योंकि पॉपुलेशन चाइना की आबादी बढ़ती जा रही थी तो इनकी तरफ एक लॉ भी इंट्रोड्यूस हो गया था कि 1 चाइल्ड लॉ था। लेकिन ये कि बाद में उसकी साइड इफ़ेक्ट भी सामने आए थे। लाजमी बात है कि उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक कुछ अर्से के बाद उनके पास यंग जनरेशन नहीं होती, तो चूँकि उनकी कैलकुलेशन की यंग जनरेशन डिस्टर्ब हो रही थी तो डेफिनेटली यंग जनरेशन किसी भी कंट्री की डेफिनेटली डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली उन्होंने फिर वही रूल कर दिया था। लेकिन कॉन्स्टेंट रेट को मेंटेन करने के लिए 2 चिल्ड्रन फैसिलिटी जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंटेड रखा गया है। इसी तरह से जहाँ पे भी हमारे पास ओवर पॉपुलेशन जो हमारे पास रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वहाँ पे ये अपनी अवेयरनेस कॉज कर रहे हैं कि किस तरह से पॉपुलेशन को रिड्यूस किया जा सकता है, किस तरह से आप अपने रिसोर्सेज को बेस्ट करते हुए जो आपके पास टेम्परेरी बेसिस पे फेमाइन काज हो चुका है आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं।